बड़े इनोवेशन के लिए लोग आते हैं और अपनी जो भी समस्याएं होती हैं उस पर हल करने के लिए गौरव भगत से वह सलाह मशवरा करते हैं। 2025 की सफलता की योजनाओं बनाने के लिए गौरव भगत अकेडमी ने बहुत सी योजनाओं पर प्रकाश डाला है और कई गोल करीब 6 गोल ऐसे बताए हैं जिससे नए बिजनेस हो, नई सोच हो और उसको नए साल में करने के लिए लोग अपने को तैयार रहे। इस सम्मेलन में व्यापारी, पेशेवर, स्टार्टअप, स्टैंडअप और कई लोग ऐसे जो नए इनोवेशन की शुरुआत करने वाले हैं गौरव भगत अकेडमी में शामिल हुए और उन्हें आगे की योजनाएं के लिए रोड मैप तैयार किया और उन्हें गौरव भगत ने एक ऐसे इनिशिएटिव दिए जिससे वो अपने आगे चल के अपने बिजनेस को और बढ़ा सकते हैं और उसे नए नए आयाम दे सकते हैं। युवंत कौर के साथ बंसीलाल की रिपोर्ट देखिए ओपन वर्ल्ड। थोड़ी क्रिएटिव लिबर्टी तो होती है तो मे बी 40% accurate. Thanks for asking that. So my journey of goal setting, it started many years ago, and it started with a book which I want to bring, but I kind of forgot about it, even though I said alarm about it yesterday. I was 16 years old in the autumn of 1992, and it was this planner I bought from an Archie's gallery in Defense Colony. And iske andar I started writing, my goals that okay, I want to have the princely sum of 15,000 rupees. I also wanted to buy, you can't really see it from there, but instead a mobile phone, because a mobile phone was a big deal. I wanted to at some point buy a car and a home. And I want to have assets worth 20,000 rupees. That's what the aim says. And a golf handicap of 16, which I've still not been able to achieve. And of course, get 70% and go to Bhagat Singh College, which I kind of managed. But the point is, even at the age of 16, I was actually, writing goals. Maybe not with the system, but I actually was writing goals. Post that, there was diaries, there was Excel sheets, there was different kinds of planners. I think Gulpreet and I introduced to this one, which is Living Your Best Year Ever, many years ago, right? And Grant Cardone's go ahead and do that as well. Then there was Tom Milo's Impact Planner, a whole bunch of things. But what happened is these systems, went from very simple, like बहुत ही average थे और बहुत ही complicated थे. So there was, two extremes really that was there. The systems went from, weekly goals to yearly goals, but never tracked, long-term impact and legacy. Those things weren't happening. Some had so much that was being asked for that it was just irrelevant. Too much time was, being taken. Some just took so much effort to maintain. Okay, that one time I'm in this session with this guy and I'm saying, no offense. लास्ट ईयर में तो बिजनेस जो भी रहा जैसा पहले आपने ही बताया, लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत आती है स्टैंडअप या स्टार्टअप जो भी स्टैंड करते हैं उनके लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट आती है और बहुत बड़ा उनको अभी डिफिकल्ट भी है। ये जीएसटी जीडीपी में बहुत बड़ा स्कोप है, यहाँ पर भी बहुत से स्टैंडअप स्टार्टअप लोग आए हुए हैं, तो उनके लिए जो है वो अपॉर्चुनिटी किस तरीके से लाया जाए? तो बहुत कुछ हो रहा है स्पेस के अंदर। ऑफ कोर्स स्टार्टअप तो एक बाजुबात रहा है। हाँ, जब हमारी शुरुआत हुई थी हमने बात की थी SME IPO की भी, तो जो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज है उसको आज मार्केट में लाना, उसको अपना IPO कराना, ये ऐसी चीज़ें जो कभी नहीं होती थी पहले। लेकिन उसका जो ट्रेंड है उसमें उसके अंदर जितना कैपिटल इनफ्लो इस साल में आया है 2024 में, दैट्स बीन फिनोमिनल एंड वो एक्सपेक्टेशन है कि वो आगे भी बढ़ता ही रहेगा। सो ग्रेट थिंग्स हैपनिंग फॉर द SME स्पेस विद वर्ड्स ऑफ SME IPOs एंड ऑफ कोर्स इन द स्टार्टअप स्पेस ऑल्सो द गवर्नमेंट इज स्टिल डूइंग अ लॉट इन दैट स्पेस। आज भी आई थिंक फाइनेंस मिनिस्टर की एक बैठक है, which is why some members of press also correct. तो GST की बैठक है। लास्ट वीक आई वाज इन CII with the finance minister as well. वो इनवाइट कर रहे हैं बहुत इनपुट्स from people like us, from business owners, from coaches, from trainers, and saying that आप बताओ कि जब बजट आएगा, बजट जो come on 1st of February, 2 महीने का टाइम रह गया है, how can I make the budget more impactful? Because there is a big push now towards employment generation. अगर हम महाराष्ट्र के बारे में बात करें और जनरल इलेक्शन के बारे में बात करें, यूपी के अंदर जहाँ भी हम हैं, तो यहाँ भी अगर जनरल इलेक्शन के अंदर सीटें गवर्नमेंट की थोड़ी गई थी बिकॉज दिस आपने एम्प्लॉयमेंट इनफ नहीं जनरेट की है। So again, right now they've been very proactive towards doing a lot for helping startups, helping the SME sector, because SME sector के अंदर जो growth potential है, जो employment potential है, वो मतलब even in the larger areas नहीं है। सर जितने पोल्यूशन है, राइट्स हैं, हो रहा है, इनसे क्या बिजनेस में बहुत ज़्यादा फर्क पड़ा है और पड़ भी रहा है लगातार। तो एक गवर्नमेंट की स्टेटस के लिए ये कितना अहमियत रखता है कि ये सब चीज़ ना हो और इस पर भी फोकस ज़्यादा किया जाए? तो हमने इसके बारे में भी बात की। आज सुबह जब हमारी बात हो रही थी तो हमने ये भी बात की एनवायरनमेंट के बारे में। जब एनवायरनमेंट देखा जाए, मतलब इस साल जून के अंदर अगर हम देखें तो मतलब एयर कंडीशनर्स की इफेक्टिवनेस खत्म हो गई थी। मतलब एयर कंडीशनर आप 17, 18, 19 में भी लेके आ रहे हैं तब भी समझ नहीं आ रहा। सो व्हाट इज हैपनिंग इज वी हैव टू बी माइंडफुल ऑफ द एनवायरनमेंट एज वेल। क्योंकि क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस की बात हो रही है अभी, पीछे जो पेरिस अकॉर्ड था उसके बारे में बात हुई। अब जब डोनाल्ड ट्रंप आए उन्होंने बोला ड्रिल बेबी ड्रिल, उन्होंने बोला इन्वायरमेंट के ऐसे की तैसे, ठीक है अब हमको क्या करना है, हमको फोकस करना है अपनी कमाई में, पैसा में, ऑयल में, ड्रिलिंग में, ऑल दोस थिंग्स। बट द पॉइंट इज वी हैव टू
बी माइंडफुल ऑफ द इकोनॉमी. यस, पोल्यूशन ने ग्रैब 4 आ गया तो कंस्ट्रक्शन बंद हो गई, कंस्ट्रक्शन बंद हो गई तो सीमेंट की खपत बंद हो गई. राइट, सो द पॉइंट इज दीज थिंग्स आर हैपनिंग बट वी हैव टू फाइंड अ बैलेंस. तो यस, अगर ग्रैब 4 है और पोल्यूशन की वजह से अगर उद्योगपतियों को दिक्कत भी आई है, बट हमें ये भी देखना है कि हमारी जो है आया हूँ ये इवेंट अटेंड करने रूल 2025. ये रूल 2025 क्यों इम्पोर्टेंट है? बिकॉज गोल सेटिंग सबको करनी पड़ती है. हम बिन स्टेशन की ट्रेन पे तो हम चढ़ नहीं सकते, तो हमें हमेशा एक क्यों इम्पोर्टेंट है? बिकॉज गोल सेटिंग सबको करनी पड़ती है. हम बिन स्टेशन की ट्रेन पे तो हम चढ़ नहीं सकते, तो हमें हमेशा एक जब हम ज़िंदगी में अपनी गेम्स खेल रहे हैं, अपने उद्देश्य की तरफ जा रहे हैं, तो हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि उद्देश्य है क्या. और गौरव भगत एक My name is Anubhav Pandey, and I'm a Chief Strategy Officer for Gaurav Bhagat Academy and Consortium Lips. So again, we never get time to ourselves that 25 में हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है. So again, this is a workshop when we get a time to think ourselves, to do some introspection. Okay, these are some plans which we can do in 25 for ourselves, for work, for family, for other things as well, and also to introspect that what went wrong or what went right in 24. So just list down those points as well and see how we can actually improve those things and can take this forward in future as well. Again, being a strategy officer, having so many responsibilities for my organizations and for my team members and everyone. So again, I think this is a time when we are heading to the new year. We will think about it, we will write about it, and then we will be implementing